we should do is the IAM. So what we need to do is we need to search the IAM in the service category. ठीक है, तो यहाँ search toolbar है, यहाँ पर आप search कर सकते हो IAM. So you can see that there is a service with the name of IAM. If you don't want to search it like here in the search bar provided, you can go and check where is the service category by the name of security, identity, and compliance. And under that, you can see there is a service that is IAM. So I can click on IAM और ये IAM पे क्लिक करूंगा तो वही पेज मेरा ओपन हो जाएगा जो मेरा यहाँ सर्च पेज से ओपन होता है. ठीक है, so I have two options. Either I can search in category or I can search directly in the search bar provided. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? Just say yes or type in chat box. All right, Malyaj and Dhruvi is saying yes. Vinayak is also saying yes. Good. So now I am onto the IAM page, right? And under that IAM, what I can see that I have my account ID. This is the Amazon account ID. You can see the name. My name is over there. And if you click on the drop or down arrow, then you can see that account ID is this. You have several options like account, organizations, service quotas, billing dashboard, and security credentials. And after that, you have settings as well. So any particular thing you want to go and see, you can choose any one of them. Otherwise, you can just click on this search and you can click on the service that you actually want to use. Like for this point of time, I am into the IAM page. IAM is nothing but the identity and access management. IAM. So identity and access management. That means, for example, I have created one user. Okay, Anmol is also saying he is having account. So if I have one user in the name of root user, because I have logged in with my root user, you can see that there are IAM resources, and you can see user group. I have 0 user group. I have 1 users in my account. I have 3 different roles in one IAM resource. I have 3 policies and I have 0 identity providers. Okay. So what is basically user group, users, role, and policy? Let me tell you one by one. So if you can see that you can click there to get to the user group page, or you can click on the left side tabs provided under the access management ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी आप यूजर ग्रुप पे वाले पेज पर मूव कर जाओगे, और अगर आपको यहाँ नहीं जाना है देन यू कैन क्लिक देयर एज वेल, तो भी आपको यही सेम पेज ओपन होगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द यूजर साइड, बिकॉज द बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन वी क्रिएट एन AWS account is to protect the account that we have created on AWS. We need to create the IAM user first. ठीक है, तो हम अपने root user से कभी भी login नहीं करेंगे unless and until it is extremely or utmost required. Otherwise we are not going to use it. यहाँ पर मैंने आपको root user से login करके दिखाया है. ठीक है, just कि मैं आपको दिखा दूं कि root user का पेज कैसे ओपन होता है. After that मैं जो भी काम करूंगा I'll try to do with the IAM user only. ठीक है, तो ये पंकज भारद्वाज से मैं रूट यूजर अकाउंट बनाया है, और इस रूट यूजर के अंदर, ठीक है, ये मेरा अकाउंट आईडी बन गई. ठीक है, उस रूट यूजर के अंदर मैंने एक यूजर क्रिएट करा. ठीक है, सो आई कैन क्लिक ऑन यूजर्स एंड यू कैन सी दैट यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ यूजर्स. ठीक है, so I have created one user by the name of April 5 Pankaj. ठीक है, and if I want to add a user, so I can add any user. If there is anyone who actually want to participate in the demo session, so I can create his ID on my account so that he can parallelly do the things if he is interested. Any one of you? I am. Yeah. What's your name? Akshat. Akshat. Okay, so I am creating an ID in the name of Akshat, right? So user ID, I have username, that is Akshat. And after that, you can see that AWS access type kya rahega? Access, you want to use access key, or you want to access with the password. So the better thing is to go with the
password if you are going to use login on the manual AWS side. But if you are going to use APIs and software development kits and using the command prompts also, so we need to log in with the access keys, right? So at this moment I am creating the user with the password. ठीक है, तो credential जो access type रहेगा वो रहेगा password का, and you can see that console provide password is auto generated password or custom password. So I can choose any one of them. I can choose any password. So I am choosing a password that is Amazon at the rate 123. Now you can see that capital A Amazon at the rate 123, and it is saying that require password reset. So whenever I am logging with this user ID, first time if I log in, then it requires a password reset. So you can see that if I create a user by the name of Akshat, okay, so a password is being generated. When Akshat logged in, then it is asking कि आपको password change करना है. If I want to allow कि वो password खुद change करे, क्योंकि मैं root user हूँ, ठीक है, तो मैं इसको check कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चाहता कि वो password change कर पाए तो मैं यहाँ पर uncheck भी कर सकता हूँ, ठीक है. तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको permission दे देता हूँ अक्षत. यहाँ पर जब आप पहली बार login करोगे, you can change your password, ठीक है. And after that, what you need to do is you need to click on permissions. तो यहाँ पे आप permission टैब पे गए, और permission टैब पे जाने के बाद you can see ये set permissions में 3 options हैं: add users to group, copy permissions to from existing user, and attach existing policy directly. We have 3 different things: user groups, user permissions, and policies. What are the 3 things? Let me discuss it one by one here. Groups are something, for example, मेरे पास एक suppose आपका जो यूनिवर्सिटी में एक स्क्वायर वन है, उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, ठीक है. सपोज ऐसी आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी, सपोज एक पंजाब में है, राजपुरा में, चंडीगढ़ में, ठीक है, और एक है आपकी सोलन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, HP में. वहां पर भी स्क्वायर वन है, वहां पर भी वही सेम शॉप्स हैं, ठीक. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आपकी शॉप सपोज चाय नगरी है, जो यहाँ पे आपने राजपुरा कैंपस में खोली है, ठीक है, दूसरी चाय नगरी का आपका एक सेटअप है जो आपका बद्दी कैंपस में, फॉर एग्जांपल, ठीक, और ऐसी दूसरी भी अगर आपके कैंपसेस हैं तो वहां पर है. तो ऐसे केस में अगर मैं उस शॉप को यूजर क्रिएट करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो शॉप मेरी वहां पर है वही सेम फीचर्स दूसरी शॉप में भी होंगे, दूसरी जगह पे. वहां पर भी एक ऑपरेटर होगा जो आपके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा. वहां पर भी कुछ लोग होंगे जो आपके ऑर्डर्स को प्रिपेयर करेंगे, है ना. फूड अगर आप ऑर्डर करते हो या जो भी चीज आप मांगोगे आपको वो देंगे, ठीक है. और बहुत सारे स्टाफ भी हो सकता है. तो एक अकाउंट कैशियर वाला रोल भी हो सकता है, एक आपका पॉलिसीज के लिए भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो मैं अभी आपको केवल 2 रोल बता देता हूँ कि एक ग्रुप ऐसा है जिस ग्रुप में मुझे केवल और केवल जो ऑपरेटर है, जो यूजर्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सारे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहा है यूजर से, ठीक है, एक वो है. और दूसरा जो ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है. केवल 2 ग्रुप हैं अगर मैं मान के चलूं. तो इन दोनों यूजर्स को, इन दोनों कैटेगरी में जो भी एम्प्लॉइज रहेंगे मेरी कंपनी के अंदर, उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक ग्रुप असाइन कर सकता हूँ. उस ग्रुप में क्या फायदा होगा कि उस ग्रुप में मैं पॉलिसीज को अटैच कर सकता हूँ, परमिशंस को दे सकता हूँ, ठीक है. नाउ परमिशंस या पॉलिसीज, बेसिकली पॉलिसी मेरे को अलाउ करेगी कि मैं अपने AWS के किस सेक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑपरेटर की, जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यूजर्स के साथ, तो अगर मैं उसको पॉलिसी अटैच करना चाहता हूं, तो उसको मैं क्या पॉलिसी अटैच करने के लिए बोलूंगा. उसके पास परमिशन होगी केवल और केवल यूजर्स के डेटा को एक्सेस करने की. यानी यूजर जो पासवर्ड देगा, वो पासवर्ड अपने सिस्टम में एंटर करके वो चेक कर सकता है कि उसने जो OTP बताया वो सही बताया नहीं, ठीक है. लेकिन वो बैकएंड पर जो लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर जाने की परमिशन नहीं है. वो परमिशन क्या है, उसके पास केवल और केवल यूजर से ऑर्डर एक्सेप्ट करने की है, ठीक है. और वो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो भी मेरा फूड प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको वो हैंडओवर कर देगा, ठीक है. लेकिन जो खाना बना रहे हैं पीछे, ठीक है, उनके पास ये एक्सेस नहीं है, वो किसी यूजर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते. तो ये 2 अलग अलग पॉलिसीज हो गई. ऐसे ही अगर मैं किसी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं AWS सर्विसेज को यूज करना चाहता हूँ, तो सपोज अगर एक डेवलपर, सपोज IT इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक डेवलपर है या एक डेवलपर की टीम है, तो वहां पर
उस डेवलपर की टीम में जो जो फीचर्स AWS के यूज करने होंगे, है ना, वो केवल उसको वो पॉलिसी हम अटैच कर देंगे। ठीक है, सपोज एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको डेटाबेस के फीचर्स अटैच कर देंगे। सपोज कोई एक स्टोरेज मैनेज कर रहा है तो उसको स्टोरेज की फैसिलिटी के लिए हम पॉलिसी अटैच कर देंगे, एंड सो ऑन। तो वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड वी कैन अटैच policies so that number of users can simultaneously get the access for that particular group. तो उस ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 10 को इंडिविजुअल पॉलिसी ना देने की बजाय मैं केवल एक ग्रुप को पॉलिसी अटैच कर दूंगा, तो वो 10 के 10 यूजर्स के साथ पॉलिसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है, अगर मैं पॉलिसी को एग्जिस्टिंग यूजर से कॉपी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यूजर बना रखा है अप्रैल 5 पंकज, ठीक है, अब अगर मैं अक्षित जो नाम से यूजर बनाया है उसको मैं अप्रैल 5 पंकज वाले यूजर की परमिशन देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आई कैन जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये अप्रैल 5 पंकज है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये यूजर कोई और है जो मैंने अब बनाया है और जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसके पास कुछ और सेट ऑफ परमिशंस है, तो ऐसे केस में आई कैन अटैच एनी पॉलिसी डायरेक्टली। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं पॉलिसी अटैच कर सकता हूँ। यू कैन सी नंबर ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉलिसी को सर्च कर सकते हो और आप खुद की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन है, आप खुद की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, तो मैं अभी कोई पॉलिसी अटैच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ तो यहाँ पर टैग्स मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोई ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट अ रिक्वायर्ड फील्ड, डिजायर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो ये रिव्यू वाला पेज आ गया। यूजर नेम है अक्षित और ये एक्सेस कर सकता है विद अ पासवर्ड, और उसके बाद यू कैन सी कंसोल पासवर्ड टाइप की कस्टम है, ये मैंने खुद से रखा है। पासवर्ड रीसेट रिक्वायर्ड है, यस मैंने परमिशन दी है कि पासवर्ड रीसेट करे वो यूजर जो भी मैंने बनाया है अक्षित नाम से। एंड आफ्टर दैट परमिशन बाउंड्री, यू कैन सी दैट परमिशन बाउंड्री इज नॉट सेट, यानी यहाँ पर मैंने कोई परमिशन दी नहीं है इस यूजर को। ठीक है, जो परमिशन समरी है वो इस पासवर्ड से एसोसिएटेड है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैनेज पॉलिसी के अंदर आ रहा है IAM यूजर चेंज पासवर्ड, तो ये एक पॉलिसी है जो यूजर को फर्स्ट लॉगिन पर पासवर्ड को चेंज करने का अलाउ करती है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं देखूं कि ये पॉलिसी है क्या, तो आप देख सकते हो ये पॉलिसी कुछ इस टाइप की है। ठीक है, यहाँ पर सर्विस एक्सेस लेवल, ठीक है, रिसोर्स और रिक्वेस्ट कंडीशंस, ये 4 इसके फीचर्स हैं। पॉलिसी यूजेज क्या है वो आप देख सकते हो, किस यूजर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, पॉलिसी वर्जन्स आप देख सकते हो कौन कौन से वर्जन्स हैं मेरे पॉलिसी के, एक्सेस एडवाइजर कौन है ये भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल उस पॉलिसी की समरी होगी। लेट मी गेट बैक टू द पेज वंस अगेन, जो मेरा पेज था। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास केवल IAM यूजर चेंज पासवर्ड पॉलिसी है। ठीक है, अगर मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक करूंगा, यूजर विद द नेम ऑफ अक्षित इज बीइंग क्रिएटेड, तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे यू कैन सी कि अक्षित नाम से यूजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब उस अक्षित नाम का यूजर मैंने अपने अकाउंट से बनाया है ना, तो अगर उसको मेरे अकाउंट में लॉगिन करना है यूजिंग दी अक्षित आईडी, तो उसको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा और लॉगिन का एक लिंक चाहिए होगा। ठीक है, तो लॉगिन का लिंक आप देख सकते हो, यू कैन फाइंड इट द डाउनलोड CSV लिंक। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये एक लिंक मेरे को मिल जाएगा, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको लिंक किस तरीके का मिलेगा। यू कैन सी दैट द यूजर नेम दैट इज अक्षित एंड द कंसोल लॉगिन लिंक इज दिस वन। ठीक है, और ये वही सेम लिंक है जो सेम लिंक आपने यहाँ पर देख सकते हो, ये सेम लिंक है ना। यहाँ पर AWS मेरे को एक और फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि आपको लॉगिन का लिंक भेज दूं, है ना, या लॉगिन कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस दे दूं, तो आप उसको एक ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अक्षित, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Yes, sir. If I provide you the privilege, right? So let me copy the link. Don't save it. Just copy the link. है ना? I am sharing it with you. Akshit Dandyan, है ना? Dandyan. Yes. Yes, sir. I may mispronounce your name, so sorry for that. I am sending it to you, right? I hope you get the link, and Yep. let me create you the host. Okay. So you are the co-host. You can share your screen now. Okay. So just
share your screen. All right. So when you click on the link that मैंने जो आपको लिंक भेजा था, है ना, तो यहाँ पर आपने जब इस लिंक को ओपन करा होगा तो ऑटोमेटिकली आप इस पेज पर लॉग इन हुए होगे, ठीक है। और आपने Yes. यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया अक्षत, और पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था Amazon@123, आपने उसको एंटर कर लिया। अब आप साइन इन करो, ठीक है। व्हेन यू साइन इन, देन आपको क्या मिला, सबसे पहले आपने पासवर्ड चेंज करने, क्योंकि मैंने आपको पासवर्ड चेंज करने की परमिशन दी थी, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड चेंज करने की परमिशन नहीं देता तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द पासवर्ड, ठीक है। आई विल शो यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है। क्या बनाया पासवर्ड? सर आई Amazon गेस सर वो AL परमिशन WordPress वो में नहीं थी एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहे हो आप? सर, वो परमिशन ये नहीं थी कि लाइक यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड इन द फर्स्ट गो रादर देन कि यू कैन चेंज इट और नो? No, you can, you need to change the password on first go, obviously. It's नहीं like सर, that. दैट वाज द परमिशन दैट यू टिक्ड ना कि उसको ऑन कर हाँ, दो कि हाँ, you हाँ, have हाँ. to change it only then you will be able to move forward, right? Yeah. If I don't And if you check, don't check that, yeah, I can still change the password in the settings, na? you can change the password, but you are logged on the same console homepage, right? Without changing, without resetting the password, you can directly come on this console homepage. है ना? I'll Yeah, show you yeah. after some time. Yes, it makes So sense. console page पे आप आ गए हैं, ठीक है। अब you can go to the services, you can go view all services or any particular service you want to see, है ना? Just search IAM, ठीक है। Go to the IAM section, click on that. एक बार refresh, हाँ, okay. So you can see that there is no permission of this IAM dashboard because I have not provided you any policy or permission, ठीक है। आप लॉग इन कर सकते हो बट यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये आपको कोई भी सर्विस यूज करोगे आपको यहाँ पर एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये परमिशन मैं सेट कर सकता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये केवल EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकता है मेरे बिहाफ पे, ठीक है। तो अक्षत को मैं EC2 इंस्टेंस का फुल एक्सेस दे दूंगा या उसको EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए परमिशन दे दूंगा, तो ही विल बी एबल टू लॉन्च द EC2 इंस्टेंस ऑन माय बिहाफ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है और मैं कंपनी में एक डेवलपर हायर करता हूँ, उस डेवलपर को मैं ये परमिशन देना चाहता हूँ कि भाई वो एक कंप्यूटेशनल पावर AWS से मेरे अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मैं उसको एक कंप्यूटेशनल के लिए EC2 इंस्टेंस का एक एक्सेस दे दूंगा, तो वो अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करके ये सारे काम कर सकता है। उसमें मैंने परमिशन ऑलरेडी उसको दे रखी है, तो वो दोबारा परमिशन मुझसे नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके पास परमिशन है, ही कैन लॉन्च नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। वो परमिशन मैं अगर हटा लूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस डिनाई हो जाएगा। ये क्लियर है? अगर आप इसमें यूजर्स पे क्लिक करोगे, so you can see that there is no permission on the users file as well, ठीक है। अब अगर आप add user पे क्लिक करोगे तो you will not be able to add any user, है ना। एक बार क्लिक करके देख लो। Try to add any of your friend. Yeah, it's saying you need permissions. You need permission, so click on next, देखते हैं आगे जाता है या नहीं जाता, ठीक है। And then click on next review and just try to click on create user. There you will find unable to create user because you are not authorized to perform, because मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं अब इस अक्षित यूजर पे जाता हूँ, ठीक है, IAM, और यहाँ अगर मैं चाहता हूँ कि अक्षित को मैं परमिशन दे दूं कि वो EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर ले या कोई भी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर ले, तो आप देख सकते हो अभी मेरे पास यहाँ एक यूजर आ रहा था, अब यहाँ दो हो गए हैं क्योंकि मैंने एक दूसरा यूजर अक्षत नाम से क्रिएट कर लिया। यू कैन सी दैट, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन अक्षत, मैंने अक्षत पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर
यहाँ देख सकते हो परमिशंस केवल एक है इसके पास, ठीक है। अगर मैं ऐड परमिशन चाहता हूं तो यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी को डायरेक्टली अटैच कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप IAM फुल एक्सेस, ठीक है, अगर मैं आपको ये प्रोवाइड कर देता हूं तो अब आपके पास पॉलिसी आ चुकी है। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करो अक्षित, और अब आप एक यूजर क्रिएट करके देखो, ठीक है। ओके सर, एक बार आप अपने हाँ, आई थिंक लॉग आउट तो नहीं करा आपने, कर लिया? नहीं सर। ठीक है, गुड। तो अब आप एक काम करो, इसको रिफ्रेश कर लो, IAM पे जाओ। हाँ हाँ ठीक है, IAM पे चले जाओ। एंड देयर यू कैन सी, यहाँ पर आप कोई परमिशन का एक्सेस नहीं दे रहा है ना। अगर आप यूजर पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी कौन कौन से यूजर्स यहाँ पर ऑलरेडी इस अकाउंट में बने हुए हैं। 2 यूजर्स हैं, जो मेरे पे दिखा रहा था वही सेम आपको दिखा रहा है, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर यूजर, आप एक ऐड यूजर कर लो, किसी फ्रेंड को बना लो, कोई फ्रेंड जो दूसरा बंदा कोई भी आप में से जो रिमोट से स्क्रीन शेयर कर सकता है, बता दो कोई भी नाम। इस विदु है। अरे उसका एनीवन गाइस, कोई भी है? I can see. Harshdeep Singh. ऑलराइट, हर्षदीप, ठीक है। और यहाँ पर आप पासवर्ड दे दो, पासवर्ड पे कुछ नहीं, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, अरे बैक करो पहले, पासवर्ड डालना पड़ेगा ना, कस्टम पासवर्ड, अदरवाइज वो पासवर्ड की दिक्कत रहेगी। यहाँ पर पासवर्ड डाल दो आप, जो भी मन कर रहा है। Amazon@123। हर्षदीप देख लो एक बार, है ना, सारे स्मॉल में है, ठीक। और यहाँ ठीक है। पर रिक्वायर्ड रीसेट को अनचेक कर दो, ओके, ठीक है, और नेक्स्ट परमिशन पे कर दो क्लिक, नेक्स्ट। टैग या, और यहाँ पे आप रिव्यू कर दो, डन। अभी मैंने कोई परमिशन नहीं दी है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसको पासवर्ड चेंज करने की परमिशन में नहीं है। इस लिंक को शेयर कर दो जरा, हर्षदीप को दे दो, चैट बॉक्स में भेज दो इसको। और हर्ष आप इसको ओपन करके अपनी स्क्रीन शेयर करके, इतने में हर्ष को हर्षदीप, लेट मी सर्च दी हर्षदीप, हर्षदीप सिंह लोंगिया, राइट? Yes sir, मुझे लीव करके आनी पड़ेगी सर, वो ब्राउजर से हो नहीं रही है। आई एम जस्ट कमिंग इन अ सेकंड सर। ओके ओके, ठीक है। तो अक्षत एक काम करो फिर, इतने तुम ही उससे क्लिक कर लो, है ना, जब तक कैसे सर? हर्षित आता है। या रहने दो, चलो ठीक है, उसको ही करने देते हैं। यस सर, मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ लिंक। यहाँ तक कोई डाउट है आपको गाइस, किसी भी टाइप का कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी टिल दिस पॉइंट। मैंने IAM यूजर्स क्रिएट करना बता दिया आपको। रूट यूजर आपका तब क्रिएट होता है जब आप एक आईडी क्रिएट करते हो, जब आपने अकाउंट क्रिएट करा AWS का, तब आपका रूट यूजर क्रिएट हुआ। उस रूट यूजर से मैंने एक IAM यूजर बनाया, और उस IAM यूजर को मैंने कोई परमिशन नहीं दी, ठीक है। तो सबसे पहले केवल यूजर को पासवर्ड चेंज की परमिशन थी, उसके बाद सेकंड टाइम मैंने उसको फुल एक्सेस दे दिया, तो उस यूजर ने भी एक दूसरा यूजर मेरे बिहाफ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे रूट यूजर अकाउंट से लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई कैन प्रोवाइड एक्सेस टू IAM फुल एक्सेस टू अक्षित, और अक्षित ने मेरे बिहाफ पे एक दूसरा यूजर क्रिएट कर लिया। तो इन सिमिलर वे अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मैंने एक सपोज एक एम्प्लॉय हायर करा अपने कंपनी के अंदर, तो उसको अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक्सेस देना है, तो वो एक्सेस मैं ना देने की बजाय मैं ये काम अक्षित को दे सकता हूँ कि भाई अक्षित, मेरे बिहाफ पे ये काम तुम करो, तुम उस यूजर का एक ID क्रिएट करो और उसको ये परमिशंस दे दो, तो वो परमिशन अक्षित दे सकता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हर्षित ज्वाइन हुआ या नहीं। Yes sir, I am here sir. Permission दे दो Okay. सर। Harshdeep, right. So I'm making you co-host. You are co-host now. You can start sharing your screen. Is the screen visible sir? Yeah. Yes sir, I am here. Sir, it didn't ask me for password reset. अरे तूने लॉगिन कर दिया सीधे सीधे, ये चीज तो दिखानी थी।
एक काम कोई करो से तो उसको दोबारा क्लोज कर दो, हाँ दोबारा कर लो। इसमें वो अकाउंट आईडी वाला लिंक था जो पर्सनलाइज्ड। कोई नहीं, दो दो तरीके हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। इसको साइन आउट करो पहले आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपके पास अकाउंट आईडी आप मैनुअली भी डाल सकते हो, या फिर आप वो लिंक भी दे दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ डिलीट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अकाउंट आईडी डालो, मैं बता देता हूँ, आपकी आईडी है मेरी 7627 7971 76277 7971 और 1583। राइट, यहाँ पे आप हर्षदीप डालो, पासवर्ड आपको पता ही है, ठीक है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर्षित से ये नहीं पूछा गया कि आपको पासवर्ड चेंज करना है फर्स्ट लॉगिन पे, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड चेंज करने की परमिशन मैंने दी नहीं है, ठीक। अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना आप कि आप कैसे इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पर जाकर के इसका पासवर्ड चेंज हो सकता है। तो आपको वो परमिशन नहीं दे रखी है, क्योंकि वो परमिशन मैंने दी नहीं है। बट अगर वो परमिशन मैं आपको अलाउ कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यू कैन चेंज योर पासवर्ड। यस, एनी प्रॉब्लम गाइस? नो सर। गुड। सो यू कैन सी दैट यू डोंट हैव एनी परमिशन अभी फिलहाल के लिए। अगर कोई और यूजर क्रिएट होगा, अब हर्षित, हाँ जी सॉरी सर। हर्षित नहीं, क्या नाम है आपका? हर्षदीप अक्षित। सर। हाँ, अक्षित 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 यस अक्षित। सर। हर्षदीप को पासवर्ड चेंज की परमिशन दे दो, अपनी ओके। स्क्रीन शेयर करो। हर्षित लॉग इन रहना आप, सॉरी हर्षदीप लॉग हाँ जी इन सर, रहना आई आप, है ना? अंडरस्टैंड सर। ओके। और अक्षित से मैं बोलता हूँ कि अक्षित अपनी स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन विजिबल नहीं हाँ विजिबल है, IAM पे जाइए। ओके, और यूजर्स में जाने के बाद हर्षदीप वाले यूजर पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पर आप परमिशंस, ये ओपन होने तो पहले परमिशंस के अंदर आपको ऐड परमिशंस पे एक्सक्यूज मी क्लिक सर, करना है। आई एम यस, सॉरी टू कट ऑफ सर, बट मुझे आई थिंक परमिशन है सर चेंज पासवर्ड की। अच्छा, ऐसा है तो एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। यार तो सॉरी अक्षित, बंद करो यार। यस सर, श्योर। एक्सक्यूज मी सर, इज द स्क्रीन विजिबल? या विजिबल, इट्स विजिबल नाउ। या सर, मैं यहाँ पे जाके एक्चुअली यहाँ गया था मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। यहाँ पे सर ये आ गया था। ठीक है, चेंज बट पासवर्ड पे क्लिक राइट, करो। Amazon at 123, let's go to Amazon at 1234। ओके सॉरी, ठीक है सर। ठीक है, वहां तक आप पहुंच जाओगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट बिकॉज परमिशन मैंने नहीं दी है। अब आप इसको ओपन कर रहने देना। हर्षित, सॉरी यस अक्षित, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके यस सर। एक बार इनको परमिशन दे दो। और जो भी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी, केवल दो ही लोग अभी हम एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं लाइव, ठीक है। यहाँ तो पे जो क्या था लोग सर परमिशन करना, यही थी यहाँ पर पॉलिसी? आपको, हाँ यहाँ पर आपको डालना है IAM, यहाँ सर्च करो IAM फुल एक्सेस। ये आ गया IAM फुल एक्सेस, ठीक है। इस पे चेक कर दो।
और अटैच कर दो, रिव्यू करके अटैच कर दो, ऐड Add परमिशन। permission. डन, ठीक है। हर्षदीप, अब आप करके देखो कि क्या आपके पास अब पासवर्ड चेंज करने की परमिशन है। एक बार इसको क्लोज करके रिफ्रेश कर लेना पेज। यस सर, अब ये आ रहा है। हम्म, हो गया सर। डन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब परमिशन दे दी, इसलिए अब आप पासवर्ड चेंज कर पाए, अदरवाइज पासवर्ड चेंज नहीं होता, ठीक है। नहीं होता, अब ठीक है अगर सर। आप चाहो तो आप क्या कहते हैं, अक्षित, यूजर्स पे जाओ, मैं यूजर्स सर। लेफ्ट साइड। हाँ नहीं, अक्षित नहीं, हर्षदीप। हाँ हर्षदीप। हाँ जी सर। ठीक है, अब आप यूजर्स पे जाइए। हाँ, अब एक बात देखते हैं कि क्या हम कोई अकाउंट डिलीट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो मेरा छोड़ के कोई सा भी डिलीट करके देखो। कर दो सर। यहाँ पर डिलीट, हाँ, अच्छा लिखना पड़ेगा, करो। हो गया एंड यू सर। कैन सी दैट अक्षत इज डिलीटेड नाउ। अब आप हर्षदीप को भी डिलीट करने की कोशिश करना कि क्या कर पा रहे हो। सर अक्षित के लिए क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा लॉग आउट हो गया क्या? लॉग आउट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जब रिफ्रेश एक करेगा तो तो लॉग आउट हो जाएगा। होना चाहिए। आई डोंट थिंक लॉग आउट, अगर रिफ्रेश करोगे तब होगा आई थिंक। रिफ्रेश करोगे तो होगा। हाँ रिफ्रेश किया मैंने, हो गया लॉग आउट। डन, ठीक है। ठीक है। अब हर्षदीप आप करो डिलीट। कर दो सर। हम्म, ओके, आई कैन डिलीट तो माई सेल्फ हर्षदीप ने आल्सो। अपने को भी डिलीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके पास फुल एक्सेस था, ठीक है। ध्यान से सुनो इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैंने आपको जो परमिशन दिया था, वो परमिशन दिया था आई एम फुल एक्सेस, ठीक है। आई एम फुल एक्सेस मतलब इस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का फुल एक्सेस है आपके पास। उसके अंदर आप यूजर को क्रिएट करते हो, यूजर को परमिशन ऐड करते हो, यूजर के अंदर रोल ऐड करते हो, है ना, कोई पॉलिसी अटैच करते हो, है ना, वो सारी चीज यू कैन डू दैट, ठीक। और आप यूजर को डिलीट भी करते हो, यूजर को पॉलिसी अटैच करते हो, वो सब चीज आप कर सकते हो बिकॉज यू हैव द फुल एक्सेस। बट अगर मैं आपको बोलता कि फुल एक्सेस नहीं है आपके पास, आपके पास एक लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है, देन ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट इट, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करना, तो आप यहाँ से साइन आउट हो जाओगे, ठीक है, डन। अब यस मैं सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ओके, तो मैंने परमिशन ले लिया आपसे स्क्रीन शेयर की, ठीक है। मैं आपकी अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यूजर्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो गया आई थिंक, है ना। यस सर। ओके, तो यू कैन सी ओनली वन यूजर ये बना हुआ है, बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सपोज एक दूसरा यूजर क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अक्षित दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या अक्षित नाम का यूजर दोबारा क्रिएट हो जाएगा। होना तो यस चाहिए। सर। हो जाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो अगर यूजर था भी तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। कस्टम पासवर्ड मैं दोबारा चुन लेता हूँ, Amazon@123, ए कैपिटल है, ठीक है। और उसके बाद ये सेम रखते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर मैं अटैच, सॉरी, इसे रहने देते हैं ऐसी, ठीक है, ठीक। यहाँ पर केवल ये पॉलिसी, ये इसके पास परमिशन है, ठीक। अगर मैं एक दूसरी परमिशन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ पॉलिसी। पॉलिसी क्रिएट करते टाइम हम यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास एक
पॉलिसी क्रिएट करने का एक एडिटर आ गया, ठीक है। यू कैन चूज सर्विस, कि आपको कौन सी सर्विस चूज करनी है जो पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हो। तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप ये सारी सर्विसेज के ऊपर पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ IAM का ही करना है तो मैं IAM की पॉलिसी एज अ सर्विस ले सकता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे परमिशंस हैं, ठीक है। यू कैन सी ऑन एक्सेस लेवल लिस्ट, ये सारे टाइप के हैं। फॉर द रीड, ये सारे टाइप की पॉलिसीज हैं। फॉर टैगिंग, फॉर राइटिंग और फॉर परमिशन मैनेजमेंट। अंडर 5 categories you can see there are large number of policies available for individual user under that IAM full access, ठीक है। IAM के अंदर अगर मैं यहाँ पर केवल और केवल इसको सिलेक्ट कर देता हूँ ऑल IAM एक्सेस, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल IAM, मतलब IAM का फुल एक्सेस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि IAM का फुल एक्सेस ना मिले, केवल और केवल फॉर एग्जाम्पल सपोज यूजर को क्रिएट करने का मिले, रोल को क्रिएट करने का मिले, या यूजर को डिलीट करने का रोल मिले, ठीक है, आई कैन क्लिक ऑन दैट और वो पॉलिसी मैं उसको अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिलीट यूजर का बनाता हूँ एक, ठीक है। डिलीट यूजर की परमिशन दे रहा हूँ मैं केवल, और कोई परमिशन नहीं दी है, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन रिसोर्सेज, यहाँ देख सकते हो स्पेसिफाई यूजर रिसोर्स आर्न फॉर डिलीट यूजर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल रिसोर्सेज और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक। सर इस टर्म का मतलब क्या होता है, यूजर ARN? ARN मतलब Amazon रिसोर्स नेम, शॉर्ट लाइक में ARN बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिटी फॉर दैट यूनिक यूजर। आइडेंटिटी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये विजुअल एडिटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो परमिशन देनी थी वो दे दी, यहाँ एक्शंस दे दिए, आपको मेंशन कर दिया, रिसोर्सेज मेंशन कर दिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ से क्रिएट करना चाहता हूँ तो आई कैन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ मैं, और रिव्यू करके यूजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये पॉलिसी बन गई, ठीक। और इस पॉलिसी को क्रिएट पॉलिसी कर दिया मैंने। नाम देना पड़ेगा, सपोज IAM डेल यूजर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकता हूँ, अदरवाइज लीव इट लाइक दैट, क्रिएट पॉलिसी। तो पॉलिसी क्रिएट हो गई। दूसरा तरीका जो पॉलिसी को क्रिएट करने का था वो था जेसन के थ्रू भी जा सकते थे हम। तो जेसन एडिटर में जाएंगे और जेसन के अंदर वो जेसन वाला पोर्शन कॉपी कर देंगे तो मेरी वाली पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। यू कैन सी दैट IAM डेल यूजर के नाम से मैंने एक पॉलिसी बना ली है। ये कस्टमर मैनेज्ड है, मतलब मैंने खुद बनाई है, AWS ने नहीं बनाई है ना। ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये AWS ने बना रखी हैं, लेकिन ये जो पॉलिसीज मैंने बना रखी हैं ये कस्टमर मैनेज्ड है ना। और अभी तक यूज नहीं हुआ है इसका। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ एक्शन में जाता हूँ और इसको अटैच करता हूँ किसके साथ, अक्षित यूजर के साथ, ठीक। तो यहाँ पर यूजर्स, ग्रुप्स और रोल्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ। अच्छा रोल आया, ओके ठीक है। तो मुझे यूजर पे जाना पड़ेगा, जस्ट गो टू द IAM वंस अगेन। यूजर्स, मैंने अक्षित क्रिएट नहीं करा था क्या अभी? ओके अभी अक्षित क्रिएट नहीं हुआ है, ओके पॉलिसी आ रहा था, ठीक है। तो मैं पहले अक्षित का यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। किया था सर, पता नहीं क्यों नहीं आ वो रहा नहीं, है। पूरा नहीं करा था मैंने, उसमें पॉलिसी अटैच करने के बाद वो पॉलिसी पेज पे आ गया था, तो ओके। पूरा क्रिएट नहीं हुआ। Amazon@123, ठीक है। नेक्स्ट परमिशंस। अब यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो IAM डेल यूजर, ये पॉलिसी आ गई, इसको अटैच कर लेंगे हम डायरेक्टली, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर पॉलिसी आ गई, IAM डेल यूजर, क्रिएट यूजर, यूजर क्रिएट हो गया है। अक्षय लॉग इन करना, सेम क्रेडेंशियल्स वगैरह, लिंक लिंक सेम ही रहेगा सर? लिंक सेम रहेगा, स्क्रीन शेयर कर लो। एक मिनट। सर ये अपनी बंद करना। अच्छा
यूजर नेम अक्षित, पासवर्ड amazon@123, ए कैपिटल है। ठीक, तो चूंकि पॉलिसी में मैंने आपको दिया था पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला फर्स्ट लॉगिन पे। ठीक है, और जब आप लॉगिन कर लोगे मैनेजमेंट कंसोल पेज पे, तो आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते बट यूजर को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिसी आपको क्या दी है, केवल डिलीट यूजर करने के लिए दी है। यूजर्स पे जाओ, अच्छा मुझे एक पॉलिसी और देनी पड़ेगी साथ में। ठीक है, ठीक यूजर है, रीड वाली। तो हाँ यूजर रीड वाली देनी पड़ेगी, तभी वो डिलीट कर पाएगा। डिलीट कर सकते हो आप, बट चूंकि रीड नहीं कर पा रहे हो इसलिए डिलीट नहीं कर सकते। मैं रीड यूजर भी दूंगा, तब आप क्या कहते हैं इसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, और अरे पहले क्रिएट करना पड़ेगा पॉलिसी, तभी तो होगा। तो चूज सर्विस, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे IAM, टाइप कर लेंगे IAM। ठीक है, IAM आ गया। यहाँ पे रीड यूजर्स है क्या, राइट नहीं होगा, गेट यूजर था रीड में शायद। गेट यूजर, ये ठीक है। तो केवल एक परमिशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, IAM get user, पॉलिसी क्रिएट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे IAM get रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है, तो यहाँ आ गया IAM get user, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया और ऐड परमिशन कर दिया। ठीक है, अब आप मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करो अक्षता। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ क्या आ रहा है, एरर क्या आ रही है, इज नॉट सर ऑडिबल लिस्ट यूजर है कोई पॉलिसी? IAM लिस्ट यूजर। अच्छा लिस्ट यूजर मैंने नहीं करा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर वो हिंट भी दे रहा है हमें कि लिस्ट यूजर वाला आपको देना पड़ेगा। गेट यूजर तो हो गया, परमिशन मिल गई, बट ये लिस्ट यूजर्स के थ्रू वो लिस्ट मेरे को मिल जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं। वो परमिशन अगर मैं दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा। एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और यहाँ पर लिस्ट यूजर, नाउ आई एम लॉगिंग विद माई अकाउंट, दैट इज माई रूट यूजर अकाउंट। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो मैं डेमो के लिए बोलूंगा, तो आप लोगों को डेमो करना होगा जो मैं रूट यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो yesterday I have created one account. So you can see that I am logged in with my root user account. ठीक, you can see that account details. These are the account details associated with my AWS account. You can see that it's in my name. ठीक है, and account ID is this, account name is this, and the address also is mentioned, phone number is also mentioned. ठीक, and all other things are also mentioned. If you want to change the region,
then we can change the region. These regions, you can see that these are enabled, disabled by default, and these are by default enabled. If we want to make these regions enable, then obviously we can enable them by clicking on there. Okay. IAM user and role access and billing information. So ये सारी चीज आप यहाँ देख सकते हो. अगर आप account create करते हो तो you can see that one by one. Otherwise, let's go back to the services. और यहाँ पर हम IAM पे चलते हैं because yesterday we were discussing about the IAM. ठीक है. And yesterday we were trying to delete the user. ठीक. तो हमारे पास दो users हैं, एक April5 Pankaj और yesterday we have created a user named Akshay. ठीक है. Later part of the day. And then this user has 3 policies associated with that. ठीक है. The first one is the IAM user change password that is by default applied. ठीक है. Then IAM get user and IAM del users I have applied that. ठीक है. तो अगर मैं Akshit, are you present? Yes, sir. Yeah. Okay. So let me search your name and make you the co-host. Okay. All right. So you are the co-host. Now you can share your screen and log in with the user. Okay. Log in with your details. I'm stopping the sharing of my screen. Okay. You can Can start you sharing. share the link once more with me? What link? or, User link? Okay. or account ID. Yeah. Account ID Anything. मैं भेज देता हूँ आपको. Yeah, account ID is easy to send. Just give me 1 second. All right, so I sent you 762979711583. ठीक है. This is the user ID. This is the account ID. ठीक है. तो आप ये कॉपी कर सकते हो. मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग. You should start sharing your screen. No, sir, just a minute. Or anyone other than Akshit and yesterday हमने हर्षदीप के साथ भी काम करा था ना. हर्षदीप था, I think. So if Yes, anyone want to log in and do the things, then you can raise your hand. I'll provide you the access so that you can also share the screen and you can also have basic idea. Yeah, Gautam want to. Okay. So Gautam, after this particular demo, I'll provide you the access. Okay. Sir, I don't have account now. No, it's not like you must have an account. I will provide you the access to my account. ठीक है. Okay. जैसे मैं अक्षत को दे रहा हूँ ऐसे ही मैं आपको दे दूंगा access. ठीक है. All right, just see that कि अक्षत ने मेरे account से IAM user अक्षत नाम से login कर लिया है. ठीक है. And when you click on sign in, automatically you will be redirected to the information is incorrect. I think Amazon@123 का password. So this is the one, right? सर IAM user अक्षित तो था ही नहीं, IAM del user था ना. नहीं IAM user वो Dell user तो उसका वो था. सर चेक करने एक बार स्टिल है क्या? मैं चेक करता हूँ. इस यूजर से मैंने IAM user अक्षित ही बनाया है. या IAM user अक्षित ही है. ठीक है. पासवर्ड शायद स्मॉल था, स्मॉल ए. Amazon में ए स्मॉल था. No. Yeah. Okay. So this is basically the screen when you log in with the Akshat account, right? और यहाँ पर आप यूजर को डिलीट करने की कोशिश करना जो हम कल कर रहे थे, है ना? Go to the IAM. Okay. And it is saying the permission denied. ठीक है. Just go to the user section. List access key. List users we need to attach the permissions, है ना? यहाँ लिखा आ रहा है IAM की list users को access करना है. ठीक. You can see that there is an error. The warning, you need permissions. User Akshat is not authorized to perform IAM list users on resource. ठीक है. ये resource में IAM list user की permission नहीं है. ठीक है. So let me share my screen and allow you to provide the access of list user. ठीक है. आप log out मत करना अक्षत. ठीक है.
I am clicking on add permissions और यहाँ पर मैं एक पॉलिसी को क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ पॉलिसी को, और पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए what I need to do is I need to choose a service. Service is IAM. Click on the IAM services, and under that you will be able to see the read list. I think list क्या नाम आ रहा था उसका? List roles, list users, I think, है ना? Yes, sir. List users. Okay, so I'm providing you the permission of list users. Next, और इसका नाम दे रहा हूं मैं IAM list user. ठीक है? This policy I'll attach with your account. So by clicking on create policy, a new policy is being created. You can see that IAM list user has been created. And if I go to the this grant permissions page, click on refresh. And if I search IAM list user in the search box, then you will be able to see that there is a policy that has come. And if I want to click on review and add permissions, then this policy has been attached to Akshat, right? You can see that I am DAL user, I am GET user, I am list user. Okay, so just share your screen, Akshat, once again. हाँ जी सर. And click on refresh on the web page here. And you might have the permission now. Now, Yes, sir. you can see that I have not provided the full access to all the users. Okay, all full access to IAM feature or IAM services, but I have provided you three facilities, three features, three policies. In terms of three policies, basically, I provided you what? I provided you a list user so that you can see the number of users associated with my account. The second thing is, if you want to delete the user, then obviously you can delete the user. Okay, so if with your account, if you want to add, just click on add users. I don't think you have a permission to add users. Yeah. Just click on अभी किसने हाथ उठाया था? Let me see the name. Sir. Gautam. Yeah, just click on create a user with the name of Gautam. And then click on password. Yeah. Custom. So on, I think it went to 3. Same password है, ठीक है? Okay. Click on next. And You need permissions. yeah, just click on next once again. Next. Create user. All right, unable to create user क्योंकि मैंने user को create करने की policy आपके साथ attach नहीं करी है. You can see that IAM create user action is not associated with your account. But let me create a user with my account. ठीक है? Let me share my screen and go to the users. I am creating another user. ठीक है? In the name of Gautam. तो मैंने A कैपिटल रखा है, ठीक है, और ये हटा देते हैं हम. नेक्स्ट परमिशन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. नो परमिशंस. A user with the name of Gautam is created. ठीक है. Now all right, Gautam, what I suggest you is to let me allow you to access Gautam Garg, na? Yes, sir. Okay, so I'm making you co-host and I'm removing the permissions from Akshat. ठीक है? All right. So Gautam, share your screen and try to log in with your account.
So can you tell the account ID? Account ID is 7627 7627 7971 7627 7971 1583. Password is capital A Amazon@123. Sir, I guess small में था. It's will show you that you don't have any access, है ना? Go to any services section. Go to सर services कहीं पे section. जाके हम देख नहीं सकते हैं कि what accesses I have and what accesses I don't No, have. no, 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 no. Go to services. Just search in search box IAM. Go directly to the IAM section. Yes, And there you can see the access is denied. Okay. Just log out once again. Copy the user ID so that you need not to type it once again. Yeah, just copy it from there. Sign out and log in with the name of Akshit. Log back in. Log back in. I have provided the access to Akshat. Okay. And now, if you log in with the Akshat account, I will try कि जो पॉलिसी अक्षत के अकाउंट पर है उससे आप एक यूजर को डिलीट कर सकते हो क्या? ठीक है, बिकॉज आई हैव granted the policy of deleting a user to Akshat only. ठीक है, just click on users. There you can see that three number of users are there. ठीक है, इस अकाउंट में मेरे पास 3 यूजर्स हैं और तीनों के 3 आपको दिख रहे हैं. Just try to delete Gautam. Click on delete and you need to type in Gautam here. Gautam not deleted. Now, why it is saying Gautam is not deleted? Because IAM list access key is not associated. ठीक है, तो you can see that अभी भी मेरे पास अक्षित यूजर के पास delete user list user वाली पॉलिसी थी. ठीक है, but still if I want to delete the user, ठीक है, then I must associate or attach a policy of list access keys. ठीक है, अगर मैं list access keys की पॉलिसी को अटैच कर दूंगा then only it will be deleted. So whenever you try to delete or whenever you try to get the access to one particular source, there might be some cases in which you might feel ki ha, I have a policy, I have an access, but at some time whenever you are getting the access to one particular service, and when you are about to launch the service, you try to know that okay, I am not authorized to perform this action because this particular policy is not attached with my account. Similarly in this case also, है ना, आप देख सकते हो गौतम अकाउंट डिलीट करने के लिए मैंने आपको डिलीट यूजर और लिस्ट यूजर वाली पॉलिसी अटैच कर दी, है ना, वहां पर उसने कोई एरर नहीं दी. ठीक है, बट व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू डिलीट द यूजर, then it is now showing that you need to attach the policies list access keys. ठीक है, अगर मैं ये पॉलिसी अटैच करूंगा then I might be able to delete a user from the account of Akshat. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि किस तरीके से हम पॉलिसी ग्रांट करते हैं, किस तरीके से पॉलिसी को चेक कर सकते हैं कि हाँ, इफ आई एक्चुअली वांट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्शन, तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आई नीड टू हैव एक्सेस टू पॉलिसीज. ठीक, नाउ जस्ट क्लिक ऑन रोल्स या एंड यू नोट हैव द परमिशन. ठीक है, क्योंकि मैंने लिस्ट रोल्स आपको परमिशन नहीं दिया है. ठीक है, अब लेट मी शेयर माय स्क्रीन. डोंट लॉग आउट नाउ. ठीक है, अभी आप लॉग आउट मत करिएगा. ठीक है, so what I should do is I need to go to the IAM user once again and I need to create a role. ठीक है, अब मैं यहाँ पर just क्लिक करता हूँ रोल पे. ठीक है, और आप देख सकते हो किस टाइप का रोल मेरे को सर्च करना है. तो अगर मैं इन रोल्स को सर्च करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रोल्स मेरे पास अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, है ना. मैं क्रिएट करता हूँ रोल नया, और रोल किस टाइप का हो सकता है वो. ठीक है,
रोल हो सकता है कि मैं कोई AWS सर्विस को एक्सेस करना चाहता हूँ, या AWS अकाउंट के किसी पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस करना चाहता हूँ, या इट मे बी रिलेटेड टू अ वेब आइडेंटिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो कॉमन यूज केसेस आर लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस द EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है। तो आई चूजन द कॉमन यूज केस दैट इज EC2 इंस्टेंस, एंड आई चूज अ सर्विस टू व्यू यूज केसेस। अब EC2 के अंदर मेरे पास ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको चूज करना चाहता हूँ, तो आई चूज EC2, ठीक है। एंड देन कौन सा AWS सर्विस के लिए इंस्टेंस को अलाउ करना है, आइदर आई कैन चूज इट फ्रॉम देयर, यहाँ पर कॉमन यूज केसेस EC2 एंड लैम्डा आ रहा था। इफ आई वांट टू चूज एनी अदर सर्विसेज जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। तो आपको EC2 चूज करना है, आइदर यू कैन चूज इट फ्रॉम देयर और यू कैन चूज इट फ्रॉम देयर, ठीक है। आप ये भी चूज कर सकते हो, दे बोथ आर द सेम थिंग। नाउ जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, और जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको पूछेगा कि आपको कौन सी पॉलिसी अटैच करनी है, ठीक। तो ये मैंने पॉलिसीज कुछ बना रखी हैं, ठीक है। AWS लैम्डा बेसिक्स, या EC2 इंस्टेंस डिस्क्राइब, या स्टार्ट और स्टॉप इंस्टेंसेस, या IAM डेल यूजर्स, IAM गेट यूजर्स, या IAM लिस्ट यूजर्स। ये तो 3 मैंने अभी बनाई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ EC2 की पॉलिसी को सर्च करना, तो आई कैन सर्च द पॉलिसी, ऑलरेडी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, AWS नहीं है, AWS होगा, AWS EC2, yeah, Amazon EC2 full access. So here is the Amazon EC2 full, है ना। या तो मैं ये सर्च कर सकता हूँ, या फिर आपके पास ये यहाँ पर नेक्स्ट पर जाकर के आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, अंडर दैट यू विल बी एबल टू सी कि मेरे पास क्या पॉलिसी है। दिस इज काइंड ऑफ JSON फॉर्मेट, जो पॉलिसी को शो करने का तरीका था, है ना। इसके अंदर यू कैन सी कि ये टोटल पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, एक्शन क्या है दैट इज EC2, इफेक्ट करना है अलाउ, अगर मैं डिनाई करना चाहता तो यहाँ पर डिनाई लिख सकता था, ठीक है। इन द सेम फॉर्मेट सेम फैशन आई नीड टू फॉर्मेट, ठीक है। और आप देख सकते हो EC2 एक्शन के अंदर इस स्टार का मतलब है दैट मीन्स EC2 का फुल एक्सेस इसके पास है। अगर EC2 का स्टार्ट इंस्टेंस या स्टॉप इंस्टेंस या कोई और चीज होती तो ऑटोमेटिकली आई विल बी मेंशनिंग कि किस लेवल का एक्सेस उसके पास है। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द EC2 फुल एक्सेस, तो ऑटोमेटिकली आई विल बी पुटिंग द स्टार ओवर देयर, ठीक है। अगर आपको ये पॉलिसी कॉपी करनी है देन यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर, और आपको जहां पेस्ट करनी है JSON डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यू कैन पेस्ट दैट। अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ओन पॉलिसी। आप जब पॉलिसी क्रिएट करते हो तो यहाँ आप क्रिएट पॉलिसी पे जाते हो, ठीक है। और क्रिएट पॉलिसी पे यू कैन पुट द JSON डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पर कॉपी करा, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड यू विल बी ग्रांटेड द सेम पॉलिसी, ठीक। बट वो पॉलिसी EC2 फुल एक्सेस, EC2 का फुल एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। उसका नाम आपको खुद से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन चूज एनी ऑफ द मेथड कि आप यहाँ JSON डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको बनाना चाहते हो पॉलिसी को, या you can choose any particular service or create the policy by your own, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो फिलहाल के लिए रोल अगर मैं देखना चाहता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं रोल सपोज मैं केवल और केवल लिस्ट यूजर को के रोल को प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। इसका एक रोल मैंने बनाया, ये तो हटा हुआ है ही, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका नाम दे दिया मैंने IAM लिस्ट यूजर रोल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसका, कि डिस्क्रिप्शन मैंने रखा फॉर एग्जांपल अलाउ यूजर टू एक्सेस लिस्ट ऑफ IAM यूजर्स, ठीक। ये मैंने इसको रख दिया, ठीक। अब आप देख सकते हो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि इफेक्ट इज अलाउ, एक्शन इज assume रोल, एंड सर्विसेज EC2.amazon.com। ये एक पॉलिसी का एग्जांपल है, ठीक। कुछ इस तरीके से हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी मैंने बनाई है IAM लिस्ट यूजर, तो मैं अगर इस रोल को किसी एक दूसरे यूजर को असाइन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास केवल और केवल ये रोल का एक्सेस रहेगा, बाकी सारे रोल्स हट जाएंगे, ठीक है। Now the role has been created,
click on view roles, you can see that there is a role and the one policy is associated with this particular role.